I welcome you on behalf of Green Catalyst, sir. Uh, First of all, let me give your introduction to our team, which is a short introduction. Today we are having on our webinar Ashish Kothari, sir. He is an Indian environmentalist working on development, environmental interface, and biodiversity policy and alternatives. Right now, he is working on Vikalp Sangam, an initiative or a platform which provides uh, initiatives or projects to come together. Am I right, sir? Yes, that's correct. Yes. Yeah. So this was the short introduction of yours. Sir, first of all, I would like to know, or we would like to know, that as a young team chasing better tomorrow or fighting for good, we would like to know a bit about your journey in last 40 years in the field of environmental activism. Okay, Pratik. Yeah. So I started doing some work on environment back in high school. So that would be 1978, 79, when some of us who were interested in nature and bird watching and so on, we were in Delhi then. In school and one or two people in college, we decided that apart from enjoying nature, especially we used to go a lot to the Delhi Ridge Forest, which is the last part of the Aravallis in Delhi. And it's a nicely forested area. So we used to go there to enjoy ourselves and just do nature walks and bird watching and so on. But we also saw that there was a lot of destruction taking place of the forest, with urbanization and Delhi expanding, construction work, road building, garbage dumping, all kinds of things. And also around the same time, there were a number of incidents with regard to wildlife in India, like Saudi Arabian princes being invited to do hunting of birds that actually even Indians could not hunt, like the floricans and the bustards. So that time we decided that instead of just enjoying ourselves, we should actually do something about it. Also, because in Delhi, for instance, air pollution was increasing a lot, water pollution was increasing a lot. So we decided to first of all do a kind of a demonstration action to save the Delhi Ridge Forest, and also a cycle rally on pollution. So that's how my involvement in this started. Also, in fact, we did a little demonstration outside the Saudi Arabian embassy, asking their princes who had come for hunting to go back. So that was kind of the beginning of a very long journey. That was 1978, 79. And then in 1980, 81, we actually traveled up into the Tehri Garhwal area of the Himalaya to meet with the Chipko movement people. I'm sure everybody on this call would have heard of the Chipko movement. So we went and spent a lot of time with the villages there, spoke especially to the women who were active in the movement. So that was 80, 81. And at the same time, we were also getting in touch with a number of environmentalists who were already there. But Kalpavriksha, which was formed in 1979, was probably one of the first urban-based environmental action groups to be formed in India. And around the same time, a lot of the more prominent organizations that are around today were being formed around that time. Anyway, so then in 1983, we had, I was still in college then, we had heard about this proposal for a lot of mega projects in the Narmada Valley. And one of my colleagues who actually had grown up in the Narmada Valley, he said, why don't we do a walk down the river and see what's going to happen because of these mega projects. So we did a 50-day walk and boat ride and all of that along the river from the mouth of the Narmada in Bharuch all the way up to the source in Amarkantak in Madhya Pradesh. And then we brought out a report on the possible impacts of the big dams. So anyway, these first 4-5 years were like a very steep, learning curve, because we begin to understand that it's not just about protecting trees and wildlife and tigers and so on, but also about people's livelihoods, who takes decisions with regard to development projects, what is development, is it really what government is talking about, why are women opposing tree felling, how is it also a gender issue,
why do people in the Narmada Valley oppose the project? Is it only because they will be displaced, or also, like we learned, that they feel that the river is their mother? It's a sacred river, so how can you make a big dam on it? So all these different cultural, social, political, economic issues kind of came as big learning for us in those first few years. So that was then, and then since then we've been working on a number of different issues. Kalpavriksha has always remained a very small group, about 15-20 people, and but we do a lot of networking with a lot of other people, like Vikalp Sangam, which I'll talk about later. And so we've been working on 4 or 5 major issues. One is the conflict between environment and development and how that can be resolved. Second is wildlife and biodiversity conservation with the crucial involvement, the central involvement of people living in wildlife areas and or dealing with biodiversity. Third is urban environment issues, especially trees and forests, because that's how we started as an organization also in Delhi. And the fourth is environmental education. Very broad, not just in a narrow sense, but broadly on conservation, environment, development. And then in the last few years on alternatives, because we felt that it's not just good enough to fight against destruction, but also what is our alternative for how society should look like, what kind of development there should be, etc. So yeah. Yes, sir. Sir, I was following you since long, but in recent years you have more focused on thinking of alternative future and ways of living a better life without considering much of GDP or growth on growth of development, what we say. So please enlighten us with your views and perspective on it. That according to you, what is like GDP and development is far important or not? So I think, I mean, one needs a very long answer to understand this deeply, but to maybe I'll try and make it short. If you look at the model of development we have today, essentially it's post-World War II. It's a model that was initiated in Europe and the United States as part of their attempt to recover their economies after the World War. And what they thought was that one way to recover the economy is for us to be able to export our goods and products across the world, and also get the whole world to kind of agree with our vision of what it means to be progressive and whatever, right? So that's how even the word development came into the economic arena. And then that's when the country started getting defined as developed, underdeveloped, developing, etc. And we all got put into one line of who is developed and who is underdeveloped and so on. And in fact, what was very interesting was that very sophisticated economies, including what India's was before colonial rule, but even at independence, there was a lot. For instance, if you look at crafts in India, it is the most diverse and most intelligent set of hand making ever in the world. Okay, if you look at it anywhere, even now it probably is, despite all the destruction. So this model that therefore you have to go in the same direction as the United States and Europe and then Japan, and which can only be done if you have high GDP growth rates. And even the idea that GDP growth is the only indicator to be used for development, this is all from the 1950s and 60s. And we just bought into it completely without even asking ourselves, is that something that we want to? I think Gandhi and Tagore and others were asking these questions. But unfortunately, our other leaders, Nehru and all, thought that this is the direction we should take. Now, what we have seen with development is that there are 2 or 3 crucial elements to it. Number one, continuous and ever expanding use of materials and energy. Okay, so and never questioning demand itself. So for instance, today, even now, if the government of India is making its energy projection, energy plans, energy sector plans, it is saying, okay, this is how much the demand is, so we need to meet this demand by making coal or dams, or now of course solar and wind and so on and so forth. You never question whether the demand itself is legitimate or not. And this also goes back to the same ideology that to think of ourselves as being progressed or wealthy or what's it, sort of a good living, let's say good life, it means we have to use maximum amount of energy.
and maximum amount of materials. Now, materials, where do they come from? They come from the earth. You mine the thing, or you deforest something, or whatever, it comes from that. So the more and more the GDP growth, the more and more the flow of materials and energy. And beyond a point, the earth can't sustain it. It's a very simple logic that the earth gives us some ecological limits. I mean, it's like saying you have a bank in which you have, let's say, 1,000 rupees as a fixed deposit. And from that 1,000 rupees, you might get 100 rupees interest every month or whatever, right? And you can use that 100 rupees. But if you go and use 200 rupees, you're eating into the capital. And if you eat into the capital, eventually you'll be finished. The bank account will have to shut down. It's exactly what we're doing to the earth with our development model. And so that's why we've been questioning GDP growth-based development models are inherently faulty. And you can't green growth. These days, everybody's talking about let's green growth or green development. You can't do that because there is no evidence that you can actually, in an absolute sense, decouple. That is, keep having GDP growth, but not use more materials and energy. This is a myth, and there's lots of evidence for that. So that's a short. I mean, there's of course a very of course, it's very huge. But my next question was on this only, that when we say environment and economic development can go hand in hand, some people say, and some people say that it's a bit impractical. But when it comes to a country like India, which is exploiting its natural resources at its best, and also importing waste of other countries as being a huge dump yard for the world. So what's your take on balancing both? How it's going to be possible in near future, or is it possible, right? Sorry to interrupt you. Just a second. Ashish bhai, is it possible for you to actually Hindi हो सके? हाँ बिल्कुल, मैं तो एक्चुअली पूछने वाला था पहले. नहीं, वेरी सॉरी, प्रतीक आपसे पूछ नहीं पाया. वेरी सॉरी टू एक्चुअली डिस्टर्ब कर दिया आपको. एक्चुअली मैं चाहती थी आपको गुजराती में भी सुन ले, बट थोड़े बाहर से भी है तो आप हिंदी में कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. મારી ગુજરાતી બહુ ખરાબ છે એટલે તમને મેં ગુજરાતીમાં સાંભળ્યા છે, તમને મેં ગુજરાતીમાં પણ સાંભળ્યા છે આશીષભાઈ, એટલી ખરાબ પણ નથી, બટ પ્લીઝ કન્ટિન્યू इन हिंदी. थैंक यू. ठीक है, सॉरी, पहले मुझे भी सूझा नहीं. तो हाँ, आपने कहा कि इसको बैलेंस कैसे करना है. तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो, अगर हम ये मूलभूत सवाल, बेसिक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ की दिशा हमें नहीं लेनी है, कुछ और अगर ढूंढना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं. अगर हम वेलबींग मतलब खुशहाली का रास्ता लेते हैं कि लोग खुश होने के लिए क्या चाहिए लोगों के लिए, लोगों को ऑफ कोर्स बेसिक खाना, पानी, रहने का, ये सब तो चाहिए, जो बेसिक नीड्स जो है, मूलभूत जरूरतें जो है. उसके साथ में शिक्षा की पॉसिबिलिटीज, हेल्थ की पॉसिबिलिटीज, आजकल तो हेल्थ का बहुत इश्यू है. इसके आगे और क्या चाहिए, ये तो एक सांस्कृतिक मुद्दा है, एक मानसिक मुद्दा है कि क्या मुझे 50 इंच का टेलीविजन की एक्चुअल जरूरत है या इच्छा है. और ये अगर शिक्षा में हमारे में आता है कि देखिए, बेसिक नीड्स सबकी मिलनी चाहिए. किसी को भी अगर डिप्राइव हो रहा है तो वो गलत बात है. लेकिन इसके आगे अगर मेरी कुछ ऐसी मांग है जिसकी वजह से कोई और डिप्राइव हो रहा है, कि मेरे 50 इंच के टेलीविजन से या मेरे हर 6 महीने एक मोबाइल फोन के बदलने से कहीं पे माइनिंग हो रही है जिसकी वजह से किसी का आजीविका जा रहा है, या कोई वाइल्ड लाइफ का नुकसान हो रहा है, या कोई जंगल खराब हो रहा है. आप में से मेरे ख्याल से जो इस कॉल में है सबको शायद मालूम ही होगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें जो कोबाल्ट दूसरी माइनिंग जाती है वो अफ्रीका वगैरह से माइन होके आता है. वहां पे युद्ध हो रहा है उसकी वजह से, और लोग मारे जा रहे हैं. हम मजे से जो है हर 6 महीने अपना मोबाइल फोन बदल रहे हैं. तो ये जो मुद्दे हैं, अगर ये हमारी समझ में आ जाते हैं, बच्चों तक अगर ये समझ आ जाती है, तो हम खुद को भी पूछने लगेंगे कि भाई कितनी जरूरतें हमारे लिए लेजिटिमेट है और कितनी उससे आगे बढ़ के है. तो ये एक बहुत बड़ा. अगर हम खुशहाली की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हजारों उदाहरण है, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ प्रेजेंटेशन में, कि जहाँ पे भारत में ही और पूरी दुनिया भर में, जहाँ पे लोगों ने पर्यावरण का सुरक्षा करते हुए अपनी जरूरतें और अपनी मांगे पूरी की हैं. ठीक है, चाहे वो भोजन है, आवास है, वगैरह सब कुछ. और लेकिन साथ में ये भी एक मुद्दा है कि ये केवल, अगर 100 लोग हैं, 100 में से केवल 10 लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो सभी को चाहिए. तो ये समता वाली बात है, इक्वालिटी वाली बात है. ये भी आजकल बहुत बड़ा अभी का जीडीपी मॉडल है, उसकी वजह से भारत में 5% ऑफ इंडियंस
have 95% of its wealth. यूएस में 1% के पास जितना बाकी 99% के पास उतना, हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो बढ़ती इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से भी अभी पूरे दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप अभी जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाली मूवमेंट देखते हैं, उसका मूलभूत एक कारण ये भी है, रेसिज्म तो है ही है, लेकिन उसके साथ में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है यूएस में, भारत में भी कभी न कभी लोग थोड़े से शांत हैं यहाँ पे, अदरवाइज कभी न कभी यहाँ पे भी दलित उठ के खड़े होंगे लोगों के खिलाफ, आदिवासी उठ के खड़े होंगे, कहीं कहीं छोटी जगह पे हो भी रहा है। तो ये अगर हम इन दोनों चीजों को लेते हैं, खुशहाली, इक्वालिटी और इकोलॉजी, इन तीनों चीजों को अगर हम साथ में लेते हैं, तो मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे लोगों ने करके दिखाया है, जिसमें सबका फायदा हुआ है, पर्यावरण भी बचा है, जंगल भी बचा है, जमीन भी बची है वगैरह, और लोग जो हैं खुश हैं। मतलब 30 साल पहले जो हालत थी और अब जो हालत है, उसमें बहुत फर्क है। टाइम अगर होगा हमारे पास तो मैं उदाहरण कई दे सकता हूँ इसके। तो मेरा कहने का मतलब, आखिर ये मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि हम एक वेल बीइंग, एक खुशहाली का रास्ता लेते हैं, और उसके कई इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बजाय ये कि जीडीपी का ले, क्योंकि जीडीपी से कोई खुश हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो कभी पता ही नहीं चलता है, और ज्यादातर हमारे हिसाब से तो एक्चुअली दुखी है, इंक्लूडिंग अभी का जो क्राइसिस, कोविड का क्राइसिस है, वो भी एक आज के डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का जो प्रोसेस है, उसकी वजह से हो रहा है। सर, डोंट यू थिंक कि इसमें एक कंज्यूमरिज्म और कंपटीशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आज अगर जैसे कि मेरा कोई दोस्त अच्छा फोन ले रहा है, बड़ा फोन ले रहा है, तो मुझे भी एक मन करता है कि यार मैं भी एक अच्छा फोन ले लूं, एक इस तरह का, और कोई तरक्की कर रहा है तो मैं भी ज्यादा तरक्की कर लूं, एक वेल्थ कंजम्पशन है जो, तो वो एक मैटर रहता है। तो वो पूरे इंडिया में ग्रास रूट लेवल तक फैला हुआ है। अगर देखने जाए कहीं, जैसे कि आपने प्रोजेक्ट्स अपने वेबसाइट पर रखे हो, वो प्रोजेक्ट्स में एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे, कि दे आर लाइक जो हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, मगर मोस्ट ऑफ द इंडिया जहाँ पर 135 करोड़ की बात करने जाए, तो वो लोग के हिसाब से तो ज्यादातर लोग कंज्यूमरिज्म पे ही जिंदा है, और आई थिंक कंपटीशन पे, कट थ्रोट कंपटीशन पे जी रहे हैं। तो उस पे सर कैसे बैलेंस हो सकता है उसमें? सही बात है, लेकिन ये देखिए प्रदीप की ये जो बदलाव आया है लगभग पिछले 1 या 2 पीढ़ियों में आया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले लोग कंजम्पशन पे उतना नहीं करते थे, लेकिन उससे कम। मैं आपको अपना ही उदाहरण दे देता हूँ। मैं जब स्कूल में था तब हमारे में से किसी बच्चे के पास 1 रुपए 2 रुपए से ज्यादा अगर हो, या अगर हम पेंसिल जो है इतनी ना हो जाए तब तक इस्तेमाल ना करें और फेंक दें, तो बाकी बच्चे उस पर हंसते थे, बिकॉज ये कंसिडर होता था कि आप वेस्टफुल हैं, या आप जो है, इसमें पर्यावरण की बात नहीं, कोई बात नहीं थी उस वक्त, पर्यावरण वगैरह को कोई नहीं था, लेकिन वो एक माहौल था कि हम जो भी है, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े सावधानी से इस्तेमाल करें, जब तक कि पूरी इस्तेमाल हो जाती है तब तक करें। जो पहला बच्चा हमारे स्कूल में, मैं दिल्ली में पढ़ता था, स्कूल में जब गाड़ी में उसके पेरेंट्स ने छोड़ा, हम उस पर हंसे थे कि देख यार तू गाड़ी पे आ रहा है, क्या बात है। आज उल्टा है ना, कोई अगर कम से कम अभी तो कोई साइकिल पे आ जाता है तो उस पर हंसते हैं लोग। लेकिन ये अगर 2 जनरेशंस में हम ये पूरा जो हमारी मानसिकता है अगर बदली है, तो अगले 2 जनरेशन में वापस क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये जो पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंडस्ट्री है, उस पे उसको सवाल पूछने ही पड़ेंगे, क्योंकि कौन हमें कन्विंस कर रहा है कि हमें जो है 50 इंच के टेलीविजन सेट किया, जैसे आपने फोन के कहा कि इस नए सबसे लेटेस्ट फोन की जरूरत है, ये कौन कन्विंस कर रहा है? ये एडवर्टाइजिंग और उसके पीछे जो कॉर्पोरेशंस फंसे हुए हैं, और कभी कभी सरकारें भी साथ में होती हैं उसकी। दूसरा कि क्या हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो एक मिनिमम लाइफ कंज्यूमिंग करके भी खुश अपने आप को दिखा सकते हैं। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यूरोप में अभी साइकिलिंग करना हाई स्टेटस हो गया है। यूरोप की ज्यादातर सिटीज में अगर आप साइकिलिंग करके जाएंगे, और वहां तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर तक जो है साइकिल करके जा रहे हैं। अब वहां पे ये हो सकता है, हमने जो गलत चीजें तो सारी कॉपी कर ली वेस्ट की, लेकिन जो कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं वो हम कॉपी नहीं करेंगे, क्यों नहीं? और इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में भी ठीक है, अभी साइकिलिंग थोड़ा सा फैशनेबल हो रहा है, पर वो 1 लाख रुपए वाली साइकिल की बात नहीं मैं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो
साइकिल करके काम पे जा रहे हैं। मैं रोज 15 किलोमीटर साइकिल पे काम पे जाता हूँ। अब तो खैर लॉकडाउन है इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ। उसके लिए फैसिलिटीज के लिए हम डिमांड करें कि साइकिल लेन्स हों, बराबर गाड़ी की सड़कों को कम प्रिविलेज दिया जाए और साइकिलिंग और वॉकिंग को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाए। तो इसमें कई चीजें आ जाती हैं। एक तो पर्सनल माइंडसेट की बात है, हमारी क्या मानसिकता है। दूसरा आसपास का कल्चर क्या है, तो वो कल्चर के लिए जैसे मैंने कहा रोल मॉडल्स वगैरह उसकी भी जरूरत होगी। तीसरा हमारी पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज में प्राइवेट व्हीकल को सबसे ज्यादा एनकरेजमेंट दिया गया है। अगर हम पॉलिसी में कहें कि आपकी प्राइवेट गाड़ी ठीक है चलाइए, लेकिन आपके पास छोटी सी जगह होगी चलाने के लिए, बाकी सारी जगह जो है बस को मिलेगी, साइकिल को मिलेगी, और उसको मिलेगी, जो हो रहा है कई दुनिया भर में कई शहरों में इस तरह से हो रहा है। तो ये पॉलिसीज की बात है। चौथा हुआ हमारे रिसोर्सेज कंजम्पशन के लिए कहाँ से आ रहे हैं, ये हमें मालूम भी नहीं है। सो कंजम्पशन एजुकेशन, कि हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो हम लेबलिंग की बात करते हैं, जैसे सिगरेट पैकेट्स पे लेबलिंग होती है, या किसी चीज में अगर कुछ टॉक्सिक चीजें हैं तो हम मांग करते हैं कि उसको लेबल करें। तो क्या ना लेबल में ये भी हो कि ये पदार्थ, इस पदार्थ की वजह से इतना पर्यावरण का नुकसान हुआ है, क्या यहाँ पे लोग विस्थापित हुए हैं, डालो उस पे, फिर लोग कम से कम पढ़ेंगे तो हो सकता है 10 में से 2 लोग कहेंगे यार ये तो बेकार है, इसकी जगह दूसरी कोई अगर ऑल्टरनेटिव वस्तु है तो मैं वो खरीद लेता हूँ। पांचवा जो हुआ कि ऑल्टरनेटिव्स की उपलब्धि, क्योंकि हम केवल कहें कि आप ये मत कंज्यूम कीजिए तो लोग कहेंगे ठीक है मानते हैं, पर उसका विकल्प क्या है, है ना। अब केमिकल पेस्टिसाइड वाला खाना अगर हम कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए आपको, या ये डिटर्जेंट्स जो हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तो लोग पूछेंगे ठीक है जिस मार्केट में मैं वो ले रहा हूँ उस मार्केट में क्या ऑर्गेनिक खाना है, क्या ऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स हैं वगैरह। तो ये एक पांचवी बात हुई। और इसमें पॉलिसी चेंजेस अगेन की बात होती है, क्योंकि बिना सरकार के पॉलिसी चेंजेस के ये करना बहुत मुश्किल है। छठी और आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ से हम रिसोर्सेज ये ले रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज हो, उन गांवों को या उन जगहों को एम्पावर करना, सशक्त करना कि वो ना बोल सकें। हमारे क्षेत्र में आप अपनी कंजम्पशन के लिए माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आजीविका के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई जगह पे आंदोलन ये चल ही रहे हैं। तो और जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जहाँ पे वन अधिकार लोगों ने पाए हैं, वो कह रहे हमारे जंगल में आपको माइनिंग नहीं करने देंगे, हमारे जंगल में आपके टूरिज्म रिजॉर्ट्स नहीं बनाने देंगे। तब जाके फिर हम पे भी सवाल उठते हैं कि भाई किसी और के नुकसान से हम अपना कंजम्पशन कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 6-7 चीजें करना जरूरी है। एक मैंने आर्टिकल लिखा तो मैं आपको भेजूंगा, सस्टेनेबल कंजम्पशन लाइन, कि जैसे कि हमारी बेसिक क्या बोलते हैं पॉवर्टी लाइन है कि गरीबी रेखा के नीचे कोई ना हो। अब गरीबी रेखा का परिभाषा वगैरह तो बहुत अलग सी बात है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी तो बदल ही दी है, तो गरीबी रेखा के काफी सारे कम हो गए ना हो। उसी तरह से मेरा कहना ये है कि एक अपर कंजम्पशन लाइन होनी चाहिए, कि इस कंजम्पशन लाइन के ऊपर कोई अलाउड ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हमारे उसमें वो करे, ये नहीं, पर एक सोसाइटी खुद जो है तय करे कि भाई अगर आप इतना ज्यादा कंज्यूम करना है तो मैं आप पे हंसूंगा और कहूंगा कि ये तो गलत है। ऐसा एक कल्चरल शिफ्ट भी लाने की जरूरत है। मगर सर जैसे कि अगर कहा जाए कि जैसे लॉकडाउन हुआ अभी, तो लॉकडाउन में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर मार पड़ा है और बंद हुई है, और अब जाके जो बेसिक्स थे वहां पर लोगों ने लौटना शुरू किया है कि अगर कोई मतलब जो सिटी में आ गया था वो गांव लौटना शुरू किया है, या फार्मिंग शुरू किया है जो सिटी में आके जॉब कर रहा था वो। तो एक शिफ्ट दिखा है उसमें अगर चेंज देखने जाए तो। मगर व्हाट कैन आई सी कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इफ यू सी, आपने कहा कि 60s के बाद जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह ने जब उनको वर्ल्ड वॉर के बाद उनको जो फंड्स चाहिए था उसके लिए ग्लोबलाइजेशन एंड ऑन उन लोगों ने स्टार्ट किया, देन लॉज में चेंजेस आए, 1991 में फाइनेंशियल पॉलिसीज में चेंजेस आए, राइट। तो उसके बाद वो लाने की जरूरत क्या थी, वो भी वी नो वेरी वेल कि क्यों वो किया गया, क्योंकि वर्ल्ड को जरूरत थी, राइट। Hello, sir. Is it audible? Yeah. I can hear you. Okay. तो जैसे कि वो प्रॉब्लम था उस टाइम पे फंडिंग का एंड ऑल, इंडिया ऑलरेडी डेट में डूबता जा रहा है।
मे बी फिर चाहे वो इतना नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के बाद, इतने एक्सपोर्ट करने के बाद, इतनी डिमांड बढ़ने के बाद, एक्सप्लोटेशन तो एट हाई है, मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। तो डिमांड तो बढ़ती जाएगी आज नहीं तो कल। आप जैसे कह रहे हो कि 20 years डाउन द लाइन शिफ्ट आना चाहिए, मगर इफ अगर नहीं आया शिफ्ट इतना जल्दी, राइट, क्योंकि एजुकेशन में ऐसे कोई चेंजेस या पॉलिसी में ऐसे चेंजेस मुझे अभी तो नहीं दिख रहे हैं, बल्कि जैसे रिसेंटली अभी एक एक्शन हुआ जिसमें कट किए गए वो चैप्टर्स एनवायरमेंट के या उसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, राइट। तो वैसे सिचुएशन में सर कैसे बैलेंस करेंगे कि गवर्नमेंट अगर समझ लो कोर्स चेंज कर भी देता है, राइट, तो उसके डेट जो है वो तो हम लोगों पर ही है ना, वो जो टैक्सेस हम जो पे कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के जो डेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए जो गोल्ड रिजर्व्स हैं और जैसे भी इकोनॉमी का भी जो वर्क कर रही है, वो पूरा टोटल ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा अगर हम थ्रू एंड थ्रू जीडीपी का सिस्टम। इंटरनेशनल डेट की बात कर रहे हैं? यस सर। अब इंटरनेशनल डेट की बात यह है कि प्रतीक, ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, लेकिन ये अगर आप देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म के टाइम से लेके अभी तक किसका डेट किसको है, ये एक बहुत गहरा सवाल है। इकोलॉजिकल डेट के बारे में पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं। इकोलॉजिकल डेट का है कि जैसे हमारे जंगल अगर अमेरिका और यूरोप के कार्बन एमिशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या अमेज़न के जंगल कर रहे हैं, तो क्या डेट किसका किसको है? और उसका मॉनेटरी वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो इट विल बी मच मच मोर देन द अभी जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेट है। एक तो वो बात हुई। दूसरा, कॉलोनियल टाइम में जितनी लूट की लोगों ने इन यूरोपियन देशों ने खासकर, उसको वापस देने की बात ये तो कोई कर ही नहीं रहा। इसमें भी काफी कैलकुलेशंस हुए हैं, काफी लोगों ने कहा है कि कितना लूट हुआ है, और अभी भी पोस्ट कॉलोनियल नियो कॉलोनियल तरीके से लूट हो रहा है अभी भी। अगर आप देखते हैं एक्चुअल टर्म्स में, और उसमें अगर आप सारे कैलकुलेशंस डालते हैं, तो यहाँ से ग्लोबल साउथ से अभी भी इवन इन इकोनॉमिक टर्म्स ज्यादा मटेरियल्स, एनर्जी और पैसा जा रहा है टू द ग्लोबल नॉर्थ देन द अदर वे अराउंड। तो डेट किसको किस पे है? अब इसको मिटाने के लिए डेट, इकोलॉजिकल डेट अगर देखने जाए तो ऑब्वियसली दे हैव डेट, बट अगर फाइनेंशियल डेट जो अभी की जो मॉडल चल रहा है अभी इकोनॉमी का मॉडल, तो वो तो मॉडल तो उसको तो चैलेंज उन लोग नहीं बनाया इससे तो। एग्जैक्टली अगर इस मॉडल को जब तक चैलेंज नहीं करेंगे तब तक तो ये सवाल, इन सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास। वो तो फिर उसी चक्कर में हम फंसते रहेंगे। लेकिन लोगों ने कहा है, कई देशों ने एक्चुअली कहा है कि हम आपको आपका फाइनेंशियल डेट नहीं पे करेंगे क्योंकि आपका डेट हमारे पे ज्यादा है, आप पहले वो वापस दीजिए, उसके बाद फिर हम सोचते हैं। तो ये होती है इकोलॉजिकल डेट, नॉट जस्ट इकोलॉजिकल डेट। कॉलोनियलिज्म इज नॉट जस्ट इकोलॉजिकल डेट ना, कॉलोनियलिज्म। और अभी भी नियो कॉलोनियल अगर आप देखते हैं अलग अलग तरीके से जो है, जैसे मटेरियल्स जो जाते हैं, मान लो यहाँ से, मान लो अगर कुछ रॉ मटेरियल्स जाते हैं, जंगल का पदार्थ जाता है या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जाती है वगैरह जाते हैं, उसका रियल प्राइस तो कभी भी पे नहीं किया जाता है। और उसका यहाँ पे जो हम कॉस्ट दे रहे हैं, चाहे वो लेबर का कॉस्ट है, चाहे एनवायरनमेंट कॉस्ट है वगैरह, वो उसमें नहीं होता है। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो ट्रेड के जो पूरे रिलेशनशिप्स हैं, उस टर्म्स ऑफ ट्रेड में अभी भी उतनी ही अनफेयरनेस जितना पहले होता था। कॉलोनियल टाइम में क्या था कि वो सीधी लूट थी, अभी वो टेढ़ी लूट है। उसको बहुत सारे स्टडीज हैं, आपको मैं भेज भी सकता हूँ। एनीवे, पर फिर इसमें सवाल ये उठता है कि क्या भारत और बाकी सारे ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आके कह सकते हैं जोर से या नहीं कि हम आपका फाइनेंशियल डेट नहीं पे करेंगे जब तक आपने अपना पूरा कॉलोनियल और इकोलॉजिकल और बाकी सारा डेट नहीं पे कर दिया? ये सवाल होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि भारत और बाकी सारे देश ये नहीं करेंगे क्योंकि हम भी तो उसी दौड़ में फंसे हुए हैं। हम अपने इंटरनल कॉलोनियलिज्म कर रहे हैं। उस डेट को पे करने के लिए हम अपने जंगल काट रहे हैं, हम अपने खनिज पदार्थ जो है निकाल रहे हैं, हम अपने आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। तो वो इंटरनल कॉलोनियलिज्म को भी जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये इंटरनेशनल वाला भी जो है वो सुलझेगा नहीं। और क्लाइमेट डेट के तो बहुत बड़ा इश्यू है कि अगर पूरे विश्व को एक यूनिट मानते हैं, हम एक एंटिटी मानते हैं, तो और क्लाइमेट को हमें 2 डिग्री से कम तक रखना है, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो नॉर्थ है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नॉर्थ है।
तो पैसे किसने देने हैं? अगर पैसे की बात हुई, पैसे देने हैं तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से जो है वो देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हम उनके कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमने उतना क्लाइमेट डैमेज किया नहीं जितना उन्होंने किया है। तो ये सारे इक्वालिटी के मुद्दे, फेयरनेस के मुद्दे, ये हमें लाने ही पड़ेंगे। खाली फाइनेंशियल डेट करने के बात करने पे कोई कुछ होगा नहीं उससे। सर आप एक जो आपका है कि अल्टरनेटिव थॉट और वे ऑफ लाइफ की तरफ हमें मुड़ना चाहिए, राइट? बट एक साइकोलॉजिकल वे से देखें तो ये एक क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ द फील्ड था कि आपके हिसाब से ये नहीं होगा कि हम किसी का राइट मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर या कोई पुअर जो है उसने कभी ये सोचा कि नहीं मेरे को भी एक लेविश लाइफ जीनी है, उसकी कोई ड्रीम है ऐसी जो उसको नॉट अनलाइक अस, मगर फिर भी जिस तरह से उसने सोचा होगा, तो वो ड्रीम अगर हम उसको रोके वो करने से, उसको ये कहे कि नहीं तू अल्टरनेटिव सोच और एक ऐसा एक इकोनॉमी ऐसा मॉडल बनाओ जिससे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो और तुम्हारा ग्रोथ हो, हैप्पीनेस इंडेक्स के तरफ आगे बढ़े, तो वो क्यों कन्विंस होगा सर? कि बिल्कुल, या तो कैसे होगा? हमारा नहीं, हमारा हक नहीं बनता है किसी गरीब व्यक्ति को रोकने का, बिल्कुल नहीं। पर वो प्रक्रिया मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये प्रक्रिया कह रहा हूँ कि मान लो हमारा डायलॉग होता है, शहर के लोग, गांव के लोग, ठीक है, अमीर गरीब जो भी जैसे भी, या दलित और दूसरे, मतलब क्योंकि हमारी समाज में काफी अलग अलग तरह की असमानता है, अलग अलग तरह की जो विभाजन है, तो उसमें जो है एक डायलॉग की प्रक्रिया की जरूरत है। इसमें ये नहीं, जैसे कि मान लीजिए हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की कि भाई शेर को बचाना है, टाइगर को बचाना है। अब टाइगर के बचाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो वेस्टर्न तरीका है जो हमने अपनाया है प्रोजेक्ट टाइगर का, कि जाके आदिवासियों को वहां से भगा दो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा दो। दूसरा तरीका है कि नहीं, आदिवासियों के साथ डायलॉग करें कि भाई आपके क्या तरीके हैं जंगल को बचाने के, आपके क्या तरीके हैं शेर के साथ रहने के, क्या हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ जरूरतें ऐसी भी होंगी जिससे हो सकता है कि नुकसान हो, तो क्या वो उसकी, जैसे कि मान लीजिए बिजली की जरूरत है, हम किसी को मना नहीं कर सकते कि बिजली, अगर किसी जंगल के अंदर गांव को बिजली चाहिए तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास तो बिजली बहुत है लेकिन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि शेर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हम विकेंद्रित बिजली उनके लिए करा सकते हैं सौर ऊर्जा से या विंड से वगैरह? बहुत पॉसिबल है, टेक्नोलॉजिकली तो इजीली पॉसिबल है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं उसको, उनकी अपनी एनर्जी सोवरेंटी जैसे बोलते हैं, ऊर्जा स्वराज, वो हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम मना वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरे करने के अलग अलग उपाय हैं। तो क्या उपाय है? इनफैक्ट वी आर हेल्पिंग इन सम सेंस टू make them jump into the 22nd century. Instead of coal fired energy, अगर सीधा सौर ऊर्जा पे ही जा रहे हैं तो हम तो जंप कर, हमसे भी ज्यादा वो प्रोग्रेसिव कहे जा सकते हैं, नहीं? लेकिन उसके साथ हमें ये भी करना होगा कि हमें अपने पे सवाल तो उठाना जरूरी है। हम अगर गांव के पास जा रहे हैं तो गांव वाले भी को भी पूछने का हक बनता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल कितना बदल रहे हैं। अगर हमें कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव्स कीजिए तो आप कितना ऑल्टरनेटिव्स कर रहे हैं? तो ये सवाल हम पे वापस आता है। और जब तक हम भी कुछ ना करने को तैयार हों तब तक हमारे पास उतना डायलॉग का भी हक नहीं बनता मेरे ख्याल से। तो ये है।